Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we will start unit number 4, algebraic expressions. What is algebraic expression? Any collection of constant and variable joined by a fundamental operation, addition, subtraction, multiplication, division, root and power is called an algebraic expression. वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐसा कलेक्शन जिनके दरमियान फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो या उसके ऊपर रूट हो या पावर मेंशन की गई हो, दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट्स एग्जांपल आर 5a plus 10b, second one is 2a multiplied by 4b, and third one is 4x square minus 3x over 6. Before discussing the kinds of algebraic expression, let's see what is variable, coefficient and constant. Variable, a symbol for a value we don't know yet. It is usually a letter like x, y or z. Example, in x plus 2 equals to 6, x is a variable. एक ऐसा सिंबल जो ऐसी वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाए जो हमें मालूम ना हो, वेरिएबल कहलाता है. ये अमूमन लेटर्स x, y, z से लिखा जाता है. एग्जाम्पल x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 में x वेरिएबल है. कोफिशिएंट, अ कांस्टेंट नंबर बाय विच अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड इज सेड टू बी अ कोफिशिएंट ऑफ दैट नंबर. एक ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जा रहा हो वो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है. कांस्टेंट, अ फिक्स्ड वैल्यू इन इक्वेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट, मींस अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज. किसी भी इक्वेशन के अंदर एक फिक्स वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है. इसका मतलब है, एक कांस्टेंट का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जिसको तब्दील ना किया जा सके. इसको एक इक्वेशन से समझ लेते हैं. इक्वेशन है 4x minus 7 equals to 5. In this equation 4 is coefficient because 4 is a value which is multiplied by a variable x and x is variable. 7 and 5 are fixed values in equation, then these are called constant, and minus sign is a fundamental operation between 4x and 7. That's why it's called operator. How many kinds of algebraic expression? There are 3 kinds of algebraic expression. First one is polynomial expression, second one is rational expression, and third is irrational expression. Let's discuss about these kinds of algebraic expression one by one. First one is polynomial expression or polynomial. An algebraic expression in which the exponent is positive integer or 0 is called polynomial expression or polynomial. एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर या ज़ीरो हो, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल कहलाता है. इट्स एग्जांपल आर 7x minus 4. इन दिस एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1 विच इज़ पॉजिटिव इंटीजर. सेकेंड एग्जांपल इज 3x square plus 3x plus 5. In this expression exponent of x is 2 and 1 respectively, which are positive integers. Third equation is 5x cube plus x square plus 2x minus 1. In this expression exponent of x is 3, 2 and 1 respectively, and these are positive integers. More about these equations. The equation which have biggest exponent 1 is called linear equation. Second, the equation which have biggest exponent is 2 is called quadratic equation. And third one is the equation which have biggest exponent is 3 is called cubic equation. Second one is rational expression. An algebraic expression which can be written in the form of px over qx, where qx is not equals to 0 or exponent are negative is known as a rational expression. एक ऐसा algebraic expression जो या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो
या उनका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। इसको एक मज़ीद एग्जांपल से समझ लेते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट इज़ द रेशियो बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल के दरमियान रेशियो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। इन दीज टू पॉलिनोमियल, in numerator place x square plus 2 and denominator place x plus 2 is a rational expression because it is a ratio of two polynomials. More example is x square plus 1 over x, this is fractional value, and second one is x to the minus 2 power. In this expression exponent is negative, that's why these two examples are called rational expression. Irrational expression, an expression which cannot be written in the form of px over qx or an algebraic expression having fractional exponent are termed as irrational expression. एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में ना लिखा जाए या ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, इररेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। इट्स एग्जाम्पल आर अंडर रूट 5x एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 1 ओवर रूट x प्लस 2। जब हम इन वैल्यूज़ में इनका रूट सॉल्व करेंगे तो रूट हटाएंगे तो हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आ जाएगा। दैट्स वाई दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड इररेशनल एक्सप्रेशंस। Let's start exercise 4.1. Its instruction is separate polynomial, rational and irrational expressions in the following. Its question number 1 is 3x minus 1 over 3. This is polynomial. How can we say that this is polynomial? In this expression, exponent of x is 1, which is positive integer. That's why this expression is called polynomial. Second one is 5. It is also polynomial. Let's see how can we say this is polynomial. इस एक्सप्रेशन में 5 के साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है तो इट मीन्स के x टू द 0 पावर मौजूद है। जब किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो इक्वल्स टू 1 होगी। जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 होगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन इज 4 ओवर x. दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन। हमने पढ़ा कि कोई भी एक्सप्रेशन उस वक्त रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है जब वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो। जब हम इसको देखते हैं ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर x को न्यूमरेटर प्लेस पे लेके आते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह होगी 4x टू द माइनस 1 पावर। हमारे पास जैसे ही हमने डिनोमिनेटर x को हम न्यूमरेटर प्लेस पे लेके आए तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया। दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। फोर्थ वन इज 0. दिस इज पॉलिनोमियल। रीज़न 0 के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, इट मीन्स 0 मल्टीप्लाइड बाय x टू द 0 पावर। जब किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। जब हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही होगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 3. In this expression, coefficient of x2 and coefficient of y1 both are positive integers. That's why it's called polynomial. Next question is 1 over y minus y. This is rational expression. हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 over y minus y which is fractional form, and second one is हम डिनोमिनेटर y को जब न्यूमरेटर प्लेस पे लेके आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा y टू द -1 माइनस y। तो हमें मालूम है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा ये एक्सप्रेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 1 ओवर 4।
दिस इज़ पॉलिनोमियल। हाउ कैन वी से दैट दिस इज़ पॉलिनोमियल? जब हम 1 का रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा और एक्सप्रेशन होगा 1/4। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट x माइनस वाई होल स्क्वायर। सबसे पहले इसका रूट सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू होगी x माइनस वाई होल स्क्वायर होल टू द 1/3 पावर। जब भी किसी एक्सप्रेशन में हमारा एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो ऐसा एक्सप्रेशन इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। उम्मीद है कि आप पॉलिनोमियल्स, रैशनल और इर्रेशनल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर।